ٹٹو کو انہوں نے خرکنہ کر کے گھوڑا بنانے کی کوشش کی تھی۔ 2018 میں یوتھ نے ثابت کیا کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور جو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے انہیں 9 مئی کے واقعات کو جواز بنا کر جیلوں میں ڈالا جائے گا، ان سے انتقام کی سیاست کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں۔ محترم ناظرین، انتہائی مختصر سے ولاگ میں بہت بڑی بات لے کر آپ کے لیے آیا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ محترم ناظرین، کل انتخابی مہم جو ہے کل رات 12 بجے اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور یوں پہلا مرحلہ جو ہے انتخابات کا ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ انتخابی مہم جیسے ہوئی، جس نے جو کچھ کیا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ عدالتی فیصلے آئے اور سب کا ایک ہی مقصد تھا۔ میں بلا تردد یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سارے کچھ جو بھی ایکسرسائز ہوئی اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر رکھا جائے، عمران خان کو سائڈ پہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، میں نے انتخابی مہم کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے، انتخابی کمپین چلا رہے ہوتے، تو اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہوتی، میاں صاحب کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ محترم ناظرین، میں پورے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا گراف، مسلم لیگ نون کا گراف، پہلے تو شہباز شریف صاحب کی حکومت میں نیچے گرا جب انہوں نے مشکل فیصلے کیے، دن بدن نیچے گرا، مسلم لیگ نون کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں لایا جائے، ان سے انتخابی کمپین کرائی جائے، لیکن محترم ناظرین وہ بری طرح فلاپ ہوئی ہے۔ اب آ جا کے ایک ڈرامہ بچا تھا کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری کا راستہ روکا جائے، تو پھر ایک بھونڈی کوشش کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کے لاہور والے آفس میں جناب عطا تارڑ صاحب نے ایک قسم کا چھاپا مارا، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ 2,500 میں ووٹ خرید رہے تھے، لیکن اسی دن ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آتی ہے کہ ان کے کارکن بیٹھ کے 5,000 میں عطا تارڑ صاحب کے لیے ووٹ خرید رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ پاکستان کی سیاست چل رہی ہے۔ کل انتخابی مہم ختم ہو جائے گی، کمپین ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے عوام کے پاس موقع ہوگا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ دینا ہے 8 فروری کو۔ محترم ناظرین، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شک پوری کوشش کی گئی، انتخابی نشان چھین لی گیا پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کو انتخابی کمپین نہ کرنے دی گئی۔ ان کے جو کارکنان تھے ان کی پکڑ دکڑ آج بھی جاری ہے، بہت سارے کارکنان کل رات بھی گرفتار کیے گئے۔ کرد کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے، وہاں پر پی ٹی آئی کے جلسے پر دھاوا بولا جاتا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جواب دیا وہ ایک دہشت گردی ہے، اور کل یہ باتیں گردش کر رہی تھی کیا ایک اور 9 مئی ہونے جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورتحال کو سیکیورٹی اداروں نے بڑے خوب سے دیکھا ہے، بڑے غور سے دیکھا ہے، اور آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، سارے ادارے اب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ جس ٹٹو کو انہوں نے خرکنہ کر کے گھوڑا بنانے کی کوشش کی تھی وہ پریکٹس ناکام ہو گئی ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے بھی نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، انہیں عمران خان کا متبادل بنایا جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ریپلیس کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن یہ ساری پریکٹس جو ہے ناکام ہو گئی ہے۔ کسی طریقے سے بھی جناب نواز شریف عمران خان کو ریپلیس کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماضی میں عمران خان جب سیاست میں نہیں تھے یا سیاست میں اس حد تک فعال نہیں تھے، 2018 سے پہلے میاں صاحب کا چورن بکتا تھا، لوگ توجہ سے میاں صاحب کی موٹر وے والی باتیں، 4 پہ روٹی والی باتیں اور مہنگائی کنٹرول کرنے والی باتیں، ان پر توجہ دیتے تھے، لیکن عمران خان نے 2018 میں جس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، اس کے بعد صورتحال تبدیل ہے۔ اب لوگ صرف اور صرف موٹر ویز اور چورن پہ بکنے والے نہیں ہیں، اب لوگوں میں اویئرنیس ہے۔ عمران خان نے بہت کچھ پاکستان کا بگاڑا ہوگا، لیکن عمران خان کی ایک پاکستان پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نوجوانوں کو بالخصوص اویئرنیس دی ہے۔ اب نوجوان جو ہے براہ راست حکومت بنانے میں شامل ہیں۔ محترم ناظرین، 2018 میں ایک ایسی کمیونٹی سامنے آئی تھی، ایک ایسا گروہ سامنے آیا تھا جو 30 سال سے کم افراد پر تھا۔ اس سے پہلے انتخابات میں بڑے لوگ حصہ لیتے تھے، نوجوانوں کی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ عمران خان نے مسلسل کمپین کر کے نوجوانوں کو انگیز کیا، انہیں پاکستان کی سیاسی دھارے میں شامل کیا، اور 2018 میں یوتھ نے ثابت کیا کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں، ہم جو فیصلہ کریں گے اسے بڑوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔
लेकिन 2018 के बाद तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ नए वोटर्स जो बने हैं उनका झुकाव पीटीआई की तरफ है। वो इमरान खान को निजात हिता समझते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। मोहतरम नाज़रीन, अगर इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाते तो मुमकिन है सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जिन्हें कड़े फैसले, मुश्किल फैसले शहबाज शरीफ ने करार दिया है, मुमकिन है ये फैसले इमरान खान करते और आज इमरान खान फिर वोट ना मांग सकते। लेकिन इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया सिर्फ इस बात पर कि इमरान खान महंगाई को रोकने में नाकाम रहे। महंगाई मार्च किया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से निकले और लाहौर से मरियम बीबी और हमजा शहबाज शरीफ निकले और ये कहकर निकले कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इस बुनियाद पर लोग उन्होंने उनका साथ दिया और एक बड़ा इज्तिमा जो था वह इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। उसके बाद जो भी असम्बली में हुआ, साइफर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बिलाखिर इमरान खान की हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए। वो लोग जो महंगाई मार्च करके आए थे बरसर इक़्तिदार आ गए और एक नया सफर शुरू हुआ। मोहतरम नाज़रीन, ये सिर्फ 16 माह का सफर है। मैं सिर्फ 16 माह की बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान के 76-70 साल की बात नहीं करना चाहूंगा। मोहतरम नाज़रीन, 16 महीनों में जो सिर्फ हुआ, सिर्फ 16 महीने में वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। महंगाई की शरह उसे सैकड़ों के साथ ज़रब दी जा सकती है। वो सिर्फ 2%, 10%, 50% या 100% उसमें इजाफा नहीं है, 1000% इजाफा हुआ। मोहतरम नाज़रीन, ये हैरान कुन बात है। मैं बार बार एक तसलसल के साथ पिछले 10 दिन से ये कह रहा हूं कि 16 महीने की कारकर्दगी जो है वो एक तरफ और पिछले 76 साल की तमाम आमरीत और जमहूरियत जमातों की कारकर्दगी एक तरफ। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उतना ही कर्जा सिर्फ 16 माह में लिया जितना इमरान खान ने, बल्कि उससे भी ज्यादा लिया जितना इमरान खान ने पूरे 3.5 पौने 4 साल में लिया था। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 16 माह में उतना कर्जा लिया। उसके बाद मोहतरम नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने उतनी महंगाई सिर्फ अपने दौरे इक़्तिदार में की, 16 माह में की, जितनी पिछले 75 साल में हुई थी। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। आपको इल्म है उन घरों का जिनका गैस का बिल सिर्फ 5 से 700 रुपए आया करता था, आज वो 20 से 25 हजार रुपए सिर्फ गैस का बिल अदा करने के पाबंद हैं और मजबूर हैं। हमारी बिसात से बाहर हो चुका, हमारी सकत जवाब देगी, बिल नहीं दे पा रहे। मुतनाज़ बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा किया गया, बेपनाह इजाफा किया। एक महीने में 4 बार बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। उसमें पेट्रोलियम की मद में यह कहा गया फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ है, फिर एक कहा गया कि ये अक्टूबर तक दिसंबर सेमाही एडजस्टमेंट की मद में है, और फिर जब IMF ने कहा कि इसी महीने में आपने हमें 81 अरब 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करके देने हैं, तो फिर 5 रुपए परसों बिजली के कीमतों में इजाफा किया पर यूनिट। तो मोहतरम नाज़रीन, ये है वो फैसले जो 16 महीने में कड़े फैसले शहबाज शरीफ साहब ने किए थे। आज पूरी कौम उसका नतीजा भुगत रही है। पुरानी बोतल में पुरानी ही शराब डाल के सामने रखी गई और बताया गया कि ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं। बहुत पुरानी शराब, 80 साल पुरानी सियासत को फिर दोबारा लेके आ गया। ना बोतल चेंज की, ना शराब चेंज की, तो मियां नवाज शरीफ साहब को लाए और कहा कि ये निजात हिंदा है। मियां साहब आए, बड़ा टिल लगाया मियां साहब ने। IMF को जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, IMF को अपना इंतखाबी मंशूर भेजा, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मियां साहब को मना कर दिया कि आप इंतखाबात में 1 यूनिट भी बिजली फ्री का ऐलान नहीं करेंगे, आप किसी किस्म की सब्सिडी का ऐलान नहीं करेंगे। तो मियां साहब को फिर वही चूर्ण बेचना पड़ा कि मैं जब आऊंगा बिजली की कीमतें नीचे ले आऊंगा। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास तो बेचने के लिए चूरन है, उसके पास दिखाने के लिए ख्वाब हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, मैं 30 लाख घर बना के दूंगा, मैं तनख्वाहें 100% इजाफा करूंगा। माजी में उनके वालिद गिरामी ने जनाब आसफ अली जरदारी ने 100% यानी कि 10 गुना ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाई, 100% इजाफा किया। ये बात उनकी इसलिए समझ आ जाती है, हजम हो जाती है कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कर चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 30 लाख घरों का ऐलान किया। मेरी इतलात के मुताबिक 30,000 के करीब घर मुकम्मल करके वो उनकी चाबियां खवातीन के हवाले कर चुके हैं। अब जब उन्होंने 30 लाख घरों का ऐलान किया है तो बात कुछ कुछ समझ में आती है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मैं कि सोलर एनर्जी में इतनी तरक्की लाऊंगा कि लोगों को 300 यूनिट तक फ्री दूंगा। इसका मतलब ये शायद ये हो सकता है कि वो लोगों को सोलर पैनल पर ले आए, लोगों को बिलों की मद में ही, किस्तों की मद में पैसे देना पड़े और हर घर में सोलर एनर्जी आ जाए। ये भी मुमकिन है, ये पॉलिसी उन्हें वाजे करना होगा। लेकिन मियां साहब के पास दिखाने के लिए कोई ख्वाब नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, कल जो हुआ मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं कि उसके बाद मियां साहब के जो
जिन्होंने पुष्ट पे हाथ रखा तो वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये घोड़ा क्या रेस जीत सकता है। वो घोड़ा जो लड़खड़ा के चल रहा है, जो लंगड़ा के चल रहा है, क्या पाकिस्तान को तरक्की दे सकता है? वो पाकिस्तान जिस पर 60 अरब रुपयों के कर्जे हैं, जहां पर 40% लोग नौजवान हैं, यूथ है, क्या उन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है? उनको नौकरियां दी जा सकती हैं? उन्हें एंगेज किया जा सकता है? अगर नहीं किया जाता तो पाकिस्तान के अगले 5 साल कैसे होंगे? बहुत सारे लोगों ने तजिए पेश किए कि फरवरी के इंतखाबात के फौरन बाद पाकिस्तान में एक ऐसा तूफान आने वाला है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं संभाला जाएगा। नौजवान बेकाबू हो जाएंगे, बुजुर्ग बेकाबू हो जाएंगे। बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर है, वो लोग जो बेरोजगार बैठे हैं, जो बिल अदा नहीं कर पा रहे, वो सड़कों पे आएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। इस सारी सूरत हाल को सिर्फ मैं नहीं देख रहा, वो लोग जो फैसले करते हैं, वो लोग जो इंप्लीमेंट करवाते हैं, उन्होंने बगौर देखा है और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कतई तौर पर एक नाकाम शख्स हैं। वो पाकिस्तान को इस भंवर से नहीं निकाल सकते। इमरान खान को नाहिल कर दिया गया है, इमरान खान तो अब मैदान में आ नहीं सकते। तो मुतबादल के तौर पर सोचा जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकती है, जो नौजवानों को एंगेज कर सकती है। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं बगैर किसी लीगल लिप्टी के और बगैर किसी वाबस्तगी के आपको बताता चलूं कि एस्टैब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो नौजवानों को एंगेज कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पिछले 1 महीने की तकारीर वो सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए हैं। उन्होंने हमेशा नौजवानों को कहा और मुस्लिम लीग नून के बारे में उन्होंने फरमाया कि अगर ये बरसर इक़्तिदार आई तो वो नौजवान जो 9 मई के वाक़यात में एंगेज नहीं थे, मुस्लिम लीग उन्हें भी एंगेज करेगी और जो लोग सड़कों पे आएंगे उन्हें 9 मई के वाक़यात को जवाब बनाकर जेलों में डाला जाएगा, उनसे इंतकाम की सियासत की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर मैं बरसर इक़्तिदार आ जाता हूं तो मैं पीटीआई के तमाम कारकुनों को रिहा कर दूंगा, कारकुनों का कोई कसूर नहीं है और इमरान खान के साथ बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे, कोई जबर नहीं किया जाएगा, कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा और गैर मुनसिफाना फैसले नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से पीटीआई का जो वोटर है, जो नौजवान है, जो यूथ है, उनकी तादाद पाकिस्तान में 4.5 करोड़ के लगभग है। मुहतरम नाज़रीन, उन्होंने तवज्जो से इमरान खान की बात को सुना है और उम्मीद की जा सकती है कि अब बाकी जो 1.5 दिन बचा है उसमें वो फैसला लेंगे। अगर वो 4.5 करोड़ 4 करोड़ लोग फैसला ले लेते हैं जिन्हें यूथ कहा जाता है, तो फिर मियां साहब की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मुहतरम नाज़रीन, कल मेरी एक ओवरसीज पाकिस्तानी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि अगर 80 लाख वोट जो हैं ओवरसीज के, उनको मियां बरादरान और इनकी सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाता, ये भी एक मुश्किल फैसला शहबाज शरीफ ना करते, तो शायद हम 80 लाख लोग ही मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का फैसला कर देते। तो मोहतरम नाज़रीन, अब वो तो वोटर्स अपना फैसला नहीं कर सकेंगे, लेकिन 4 करोड़ लोग जो हैं उनको कतई तौर पर बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। ये यूथ का जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है। और आप मेरी बात लिख लीजिए कि 8 फरवरी को ये जिन जो है अपना फैसला देगा और वो फैसला पाकिस्तान के हक में होगा और वो फैसला ये साबित करेगा कि अब 4 रुपए की रोटी वाला, मोटरवे वाला चूरन नहीं बेचा जा सकता। अब पाकिस्तान के लिए वही जमात जो बड़ा पैकेज लेके आएगी, नौजवानों के लिए बड़ा पैकेज लेके आएगी, पाकिस्तान की खुशहाली का ऐलान करेगी, वही पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी। आज की ये बात लिख लीजिए कि एस्टैब्लिशमेंट अपना पूरा टिल लगाने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मियां नवाज शरीफ साहब डिलीवर करने में नाकाम हो जाएंगे। वो लोगों को एंगेज करने में नाकाम हुए, अपनी तरफ मुतवज्जो करने में नाकाम हुए हैं, इसलिए उन पर से हाथ उठाया जा रहा है। और जितनी धांधली होना थी वो 6 फरवरी तक हो चुकी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम को फैसला करने दिया जाएगा, पाकिस्तान की कौम खुद फैसला करेंगे। और अगर ये मौका पाकिस्तान की कौम को दे दिया गया तो 4 करोड़ जो नौजवान हैं, 30 साल से कम उम्र के अफराद हैं, वो अपना फैसला देंगे और वो ऐसा फैसला देंगे जो मियां साहब की तवक्को के बिल्कुल बरअक्स होगा। और ये ऐसा मुश्किल फैसला होगा जो शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तानी कौम ने तो शहबाज शरीफ के मुश्किल फैसले बर्दाश्त कर लिए, लेकिन 8 फरवरी को जो 4 करोड़ लोग फैसला करने जा रहे हैं वो शहबाज शरीफ की 7 नस्लें भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।